see here, we took last class, we took this is one schedule T1 and this is another schedule T2. This we wrote, this is schedule 1. This you have with you in your copy. Now then with schedule 2 हम T2 को पहले लिए, T1 को बाद में लिए. So then also I said कि then okay, consistency is somehow it is preserved. Fine. Then we said let us take a third schedule where we write this way. Okay. But you can see when the schedule is complete, यानी ये T1 और T2 दोनों अगर चल जाएगा, जब दोनों complete हो जाएगा, तब भी ये result कुछ वैसा ही देगा जैसा कि schedule 1 में हमको मिला था. schedule 1 के बाद हमको जो result मिलेगा, ये schedule भी exactly वैसा ही result देगा. So we can say it is, you see here it is written, the following schedule is not a serial schedule, but it is equivalent to schedule 1. Equivalent करने का मतलब है ऐसा अगर हम ऑपरेट करवाते हैं शेड्यूल को यानी ट्रांजैक्शंस को, तब भी वो शेड्यूल 1 जैसा ही आंसर देगा. सो दैट इज व्हाई it is kind of a equivalent schedule. Then we say, right, let us come to this schedule. यहाँ T1 और T2 है. You see read A colon equal to A minus 50. यहाँ okay. So hello, just a second please. Yeah. Sorry, because my earbuds, they went off, so I had to just change. Sorry for the delay. So let us continue for what I said was, let me go back to this slide. So here what I said was, let's see, A is A minus 50. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? Let me explain this a bit. इस शेड्यूल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? से यहाँ पे A का वैल्यू है, से द वैल्यू ऑफ A ठीक है, से वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1000. ठीक है, 1000 अगर है तो ये रीड A का वैल्यू कितना पड़ रहा है? 1000. A इज A माइनस 50, तो A का वैल्यू यहां पे हो गया है 950. लेकिन यहां जब ये A पढ़ रहा है, दैट इज अगेन 1000. कहे कि अभी तक ये तो लिखा नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो राइट स्टेटमेंट मेड बाय द ट्रांजैक्शन T1. तो ये भी इसको 1000 रुपीज पढ़ लिया, which actually shouldn't have been the case. You see, यहाँ पे क्या हो रहा था शेड्यूल 3 में, ये A पढ़ा 1000, A is A minus 50, that is 950. राइट A, तो A का वैल्यू अब लिखा गया 950. तो तब जब ये रीड A पढ़ रहा है इस समय, then actually it is reading the value 950. So the difference between this schedule 3 and schedule 4, schedule 3 is equivalent to schedule 1, no problem.
लेकिन ये जो शेड्यूल 4 है, ये इट विल नॉट preserve the sum of this A and B and it will lead to an erroneous schedule. तो ये तो शेड्यूल ही अपने आप में गलत है. This is not a proper concurrent schedule. तो शेड्यूल 4 concurrent schedule नहीं है. That is what we can say. Now, so serializability, we said we have already studied this. And the assumptions are there. These were the assumptions. I will definitely publish this to you also, so that what you can do is you can refer to the slide if required. You can refer to the slide whenever it is required. So now, so schedule 4 is we don't want conflicting instructions. You have already written this. ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है. So what happens is, in brief, conflict serializability के बारे हम यही बोलते हैं. If a schedule S can be transformed into a schedule S dash by a series of swaps of non-conflicting instructions, we say that S and S dash are conflict equivalent. And we say a schedule S is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule. तो ये इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे प्रूव किए थे? We had these two schedules. ये दो शेड्यूल्स हमारे पास हैं, T1 and T2. और इसमें हम क्या करते गए थे? हम देख रहे थे कि कहां पे कॉन्फ्लिक्ट है और कहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. तो हमको ये दिखा था, जब हम कॉन्फ्लिक्ट देखने का कोशिश कर रहे थे, सो हमको ये दिखा था कि दैट रीड ए राइट ए, यहां राइट ए है और यहां रीड ए है, तो ये दोनों में तो कॉन्फ्लिक्ट है. लेकिन यहां पे राइट ए है और राइट बी है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों अलग अलग डेटा आइटम था, तो आई कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन. यानी हम राइट बी को यहां लिख दे सकते हैं, राइट बी, और ये राइट ए को यहां से हटा के, जस्ट सेकंड प्लीज, आई हैव टू टेक दिस कॉल. दिस इज सम from father principal regarding sorry to disrupt your class. That was a call from father principal regarding your examination and all. I really couldn't avoid that call. So तो हम लोग क्या किए थे वहां पे? हम लोग इसको स्वैप करते हुए ले गए थे, एंड स्वैप करते हुए, it is in the previous slide, so we need not spend time on that and need not spoil our time here. So हम लोग उस तरह से स्वैप करते गए नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन को. we obtained this. So then we said this schedule S, ये जो schedule S है, this is nothing but this is a serializable schedule. यानी schedule जो है उसको हम ऐसा बना सकते हैं. So that is why it is called serializable. And of course, चूंकि हम इसमें conflict serializability के rules हम लगे थे, so that is why we say this schedule 3 is conflict serializable. ठीक है? Conflict serializable जिसका equivalent schedule is like this, schedule 6. So that is what we said. That is what is written here. We say that a schedule is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule. Okay, and S and S dash are conflict equivalent. करने का मतलब है this is S and ये जो है हमको S dash मिला, ये S dash, these are conflict equivalent schedules. So that is what we say. This is what is your conflict serializability. So the question that you get in this part is, you get a long question like, what do you understand by serializability? Okay. What do you understand by serializability? Explain conflict serializability by giving examples.
तो इफ इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू राइट दिस एंटायर थिंग। सीरियलाइजेबिलिटी क्या हुआ, उसके दो टाइप हुए, उसके दो टाइप के बाद उसमें किस तरह का शेड्यूल्स, व्हाट आर शेड्यूल्स, ठीक है। शेड्यूल्स देने के बाद कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के रूल देने होंगे, उसके बाद यू हैव टू शो कि कैसे हम स्वैप करके ले आते हैं। दीज टू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट शेड्यूल एंड एस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट serializable schedule. So that will be the answer to that long question. Then conflict serializability में एक चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, that I am leaving up to you to study. You can write on the question that every conflict serializable schedule, every conflict serializable schedule is view serializable, but the converse is not true. But the converse is not true. Every conflict serializable schedule is view serializable, but the converse is not true. This is also another important question that they ask you. Now you see, this is the schedule, example of a schedule that is not conflict serializable. मान लेते हैं T3 और T4 दो शेड्यूल दिया हुआ है, तो ये रीड क्यू है और ये राइट क्यू है यहाँ पे। तो ये रीड क्यू और राइट क्यू का पोजीशन हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट राइट रीड क्यू हियर एंड आई कैन नॉट राइट राइट क्यू हियर, ठीक है। बिकॉज कहने का मतलब ये है, ये अगर T4 में अगर पहले राइट क्यू होता है तो T3 का रीड क्यू कौन सा क्यू का वैल्यू पढ़ेगा, दैट वैल्यू विच इज रिटन बाय T4। यहां जो राइट हो रहा है, व्हाटएवर इसके आगे अगर कोई भी स्टेटमेंट क्यों ना रहे, तो जो भी ये लिख रहा है फाइनली उसी को ये पढ़ रहा है। लेकिन इस शेड्यूल में उसका मतलब ये नहीं है, ये कोई इनिशियल वैल्यू पढ़ रहा है, रीड क्यू। ओके, सिमिलरली दिस राइट क्यू एंड दिस राइट क्यू, दिस इज देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। पॉइंट नंबर 4 कि अगर दोनों में राइट क्यू है तो दिस T3 writes the final value of Q in the schedule S. So इसीलिए शेड्यूल S डैश में भी इसी को फाइनली लिखना होगा। तो यहां ये दोनों को भी हम स्वैप नहीं कर सकते इनका पोजीशन। So that is why we say that this schedule is not conflict serializable. ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये शेड्यूल जो ये व्यू सीरियलाइजेबल है कि इसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, ये सीरियली ही चल रहा है। तो दिस इज व्यू सीरियलाइजेबल, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज करके इसको हम नहीं तोड़ सकते। ओके, वी आर अनेबल टू स्वैप इंस्ट्रक्शंस इन द अबव शेड्यूल टू ऑब्टेन आइदर द सीरियल शेड्यूल T3 T4, यानी T3 पहले कर दें उसके बाद T4, यानी रीड क्यू राइट क्यू, फिर यहां पे लिखेंगे राइट क्यू। तो दिस इज व्हाट इज T3 T4 और द सीरियल शेड्यूल T4 T3, यानी पहले राइट क्यू आएगा उसके बाद रीड क्यू और फिर यहां पे राइट क्यू। तो ये हम इसको नहीं कर सकते। तो चूंकि नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, सो देन दिस प्रेसिडेंस ग्राफ, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस टू फाइंड आउट this precedence graph and test for conflict serializability. Fine. Now, so we come to concurrency control. अभी तक हम व्यू सीरियलाइजेबिलिटी नहीं बोले हैं, बात नहीं किए हैं, बट कंकरेंसी कंट्रोल हमको चाहिए। हम लोग पहला ही दिन से बात कर रहे थे, दिस ऑल चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। हम लोग बोले थे कि भाई एसिड प्रॉपर्टी हमको फॉलो करना होगा, एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करना है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी जो भी है, ओके, द आइसोलेशन, ऑल प्रॉपर्टी को फॉलो करना होगा। और हमको चाहिए कि प्रोग्राम सब जो है कंकरेंटली भी रन करें, ऑल ट्रांजैक्शंस जो है T1 T2 T3 ये कंकरेंटली भी रन करवाना होगा, तब हमारा ऑप्टिमाइज थ्रूपुट ऑप्टिमाइजेशन हम करवा सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इधर बोल रहे हैं कि ये भी करवाना है और इधर भी बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी भी प्रिजर्व करना है। तो
ये जब कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है तब हमको ये देखते रहना होता है कि दे शुड गिव मी द रिजल्ट एज इफ दे आर रनिंग सीरियली। इसीलिए हम ये सीरियलाइजेबिलिटी वाला टेस्ट कर रहे हैं कि क्या इनके रन करने से रिजल्ट वही आएगा जो ना कि सीरियल चलाने से होता। उन्हें सीरियल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं एक के बाद दूसरा। तो अगर वो होता है तो तब हम क्या कर रहे हैं कि कंकरेंट भी चला रहे हैं और रिजल्ट सीरियल जैसा पा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट। सो कंकरेंसी कंट्रोल, उसी में हम लोग ये पढ़ते जा रहे हैं। So a database must provide a mechanism that will ensure that all possible schedules are both conflict serializable, recoverable and preferably cascadeless। तो यहाँ पे रिकवरेबल चूंकि हमको पढ़ना नहीं था, बट व्हाट आई वांट इज कि अगर इस तरह का चीज हो रहा है कि ये सीरियलाइजेबल नहीं हो रहा है तो देन आई शुड रिकवर बैक, यानी रोल बैक कर जाना चाहिए। देयर इज अ टर्म कॉल्ड रोल बैक। रोल बैक मीन्स हमारे पास जो लास्ट नोन गुड स्टेट था उस तक ये वापस चला जाना चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिकवरेबल। कैस्केडलेस कहने का मतलब है उससे रिलेटेड जितना भी काम हो रहा था, ये अगर शेड्यूल जो है इसको अगर रोल बैक करवाना तो इसके रिलेटेड जितना भी है दे आर टू बी कैस्केडेड टुगेदर, यानी सबको इंक्लूड करके जाना है। सो वी नीड नॉट बॉदर अबाउट दिस प्रॉपर्टी राइट एट दिस पॉइंट। ओके, सो a policy in which only one transaction can execute at a time generates serial schedules but provides a poor degree of concurrency। ये तो है ही, अगर हम सीरियली चलाते तो कंकरेंट नहीं होगा। Concurrency control schemes trade off between the amount of concurrency they allow and the amount of overhead that they incur। यानी इसको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी अगर हम चेक करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो एक चेक हो रहा है पहले, उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूशन हो रहा है। सो वो जो चेक कर रहे हैं दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओवरहेड, यानी एडिशनल कमांड्स आर देयर अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रांजैक्शन। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओवरहेड। नाउ तो ये देखना होगा कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम को। अभी हम लोग कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम में और बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। यू विल कम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस ओवरहेड। अभी तो हम सिर्फ सीरियलाइजेबिलिटी का बात कर रहे हैं, बट वी विल टॉक अबाउट सीरियलाइजेबिलिटी को भी कैसे इंश्योर करते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो टेस्टिंग ए शेड्यूल फॉर सीरियलाइजेबिलिटी आफ्टर इट हैज एग्जीक्यूटेड इज अ लिटिल टू लेट। टेस्ट, बिकॉज एक बार चल चुका शेड्यूल तो फिर सीरियलाइजेबिलिटी देखना तो परेशानी हो गया। Tests for serializability help us understand why a concurrency control protocol is correct. So goal is to develop concurrency control protocols that will assure serializability। यानी हमारा काम क्या है, ये पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? To develop concurrency control protocols, rules that will assure serializability। चलेगा concurrent, but it will assure serializability। So this is what is the goal of concurrency control. Now, view serializability. Okay. Now, in view serializability, there are 3 points as you see. So there, it is written here that let S and S dash be two schedules with the same set of transactions. Okay. S and S dash are view equivalent if the following 3 conditions are met on each data item Q. If in schedule, कहने का मतलब है 2 शेड्यूल है, एक है S और एक S dash। Let me go back to show you। This, ये एक S है और दूसरा है S dash। ठीक है, 2 अलग अलग शेड्यूल है हमारे पास, 2 अलग अलग शेड्यूल है हमारे पास। वन इज S एंड अनदर वन इज S dash। तो बोल रहा है द schedule S and S dash are said to be view equivalent if the following 3 conditions are met।
you have these schedules with you, so you can refer to these schedules. ठीक है, हम लोग उसमें जा रहे हैं. We are going to the conditions actually, कि what are those conditions, right? If in schedule S, transaction Ti reads the initial value of Q, then in schedule S dash also transaction Ti must read the initial value of Q. Again, let me go back. पहला example समझा दे रहे हैं. Q serializability हमको देख के पता लगना है. तो क्या बोला? For each data item Q, यहाँ पे data item है A. This is my data item A in this schedule S. For each data item Q, if transaction Ti reads the initial value of Q in schedule S, तो यहाँ पे transaction T1 जो है, it reads the initial value of A in schedule S. Then transaction Ti must in schedule S dash also read the initial value of Q. तो यानी ये transaction T1 in S dash should also read the initial value of Q. तुम देख रहे हो यहाँ पे है, ये read A कर रहा है, यहाँ पे भी ये read A कर रहा है. T1 यहाँ पहले read A यही किया था, T1 S dash में भी पहला read A यही किया था. कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ऐसा नहीं. You understand this statement, I hope. T1, T2. ये अगर लिखते हैं, that means T1 is followed by T2. Or if I write like this, T2, T1, so then this is not the same material, because ये पूरा चीज ऊपर चला जाता और ये पूरा चीज नीचे आ जाता. ये अगर ऐसा लिखते हैं, then also it is serial. दोनों serial schedule ही है, लेकिन हो सकता था कि हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी करके इसको ले आए हैं कि T2 पहले आ गया, T1 पहले आ गया, लेकिन व्यू सीरियलाइजेबल S और S डैश नहीं होगा, बिकॉज पहला पॉइंट में ही गड़बड़ हो रहा है. बोल रहा है कि T1 अगर यहाँ पे पढ़ा था रीड A को S में, तो T1 को S डैश में भी रीड A को उसी को पढ़ना होगा पहले, और इसको अगर हम ऊपर कर देते तो T2 रीड A को पढ़ता, तब ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होता. यानी देखिए कि हमको लग रहा है यहाँ भी पढ़ रहा है तो यहाँ भी पढ़ रहा है. That is what is the meaning. Point number one. Similarly, you can compare all these. If in schedule S, transaction Ti executes read Q, and that value was produced by transaction Tj, if any, then in schedule S dash, also transaction Ti must read the value of Q that was produced by the same write Q operation of transaction Tj. यानी अगर यहाँ पे कर रहा है, Ti में कोई रीड क्यू कर रहा है जिसके ऊपर कोई कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद राइट क्यू हो रहा है, तो Tj जो माने Ti जो है वो भी उसको ऐसा ही you see again, see the meaning. If in schedule S transaction Ti यानी T1 executes read queue, ठीक है, and that value was produced by transaction Tj, यानी Tj में भी कहीं पे उस क्यू को यूज किया जा रहा है, produced by transaction Tj, then ये schedule S है. Then in schedule S dash also the transaction Ti must read the value of Q that was produced by the same write Q operation of transaction Tj. तो यहाँ Tj जो है या T2 या जो भी ने, then in schedule S dash also transaction Ti must read the value of Q, okay, that was produced by the same write Q operation of transaction Tj. इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझते हैं, let me use a blank page. I wanted to tell you, what I wanted to tell you is this. This is transaction S. यहाँ पे this is one is Ti and this is Tj. यहाँ पे S dash जो है, here also it is Ti and it is Tj. The rule says, अगर हम serialize, for each data item Q,
if transaction Ti executes read queue in schedule S and that value was produced by transaction Tj if any. Okay, चलो इसमें समझने का कोशिश करो, that will be much easier. मान लेते हैं कि यहां Tj एक राइट क्यू कर रहा है, इसको समझो, Tj जो है एक राइट क्यू ऑपरेशन किया, तो Tj राइट क्यू ऑपरेशन कर रहा है और Ti जो है यहां एक रीड क्यू ऑपरेशन कर रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, for each data item q, if transaction Ti executes read queue in schedule S and that value was produced by transaction Tj, ये क्यू का वैल्यू कौन, ये जो क्यू पढ़ रहा है इसको कौन प्रोड्यूस किया था, ये कौन सा क्यू पढ़ेगा, जो ये लिखा था Tj जो लिखा था। Then transaction Ti must in schedule S also read the value of q that was produced by transaction Tj। तो यहां पे भी ये होना होगा कि यहां जब अगर कोई राइट क्यू करेगा तो उसी वैल्यू को यहां पे इसको रीड क्यू करना होगा, यानी चाहे कभी भी हो, 2-3 स्टेटमेंट के बाद हो, आगे पीछे हो, कोई नहीं, लेकिन ये जो क्यू लिख रहा है उसी क्यू को Ti भी पढ़ेगा इन S डैश, इन S डैश। ये चीज जो S में था वही उसी तरह का चीज S डैश में भी होना होगा। आई टोल्ड यू इट्स व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कहने का मतलब जैसा S में दिखता था वैसा S डैश में भी दिखना चाहिए। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। And then we come to that point number 3, that was our last point. So here what we say is, in the last point we say that the transaction that performs the final write queue operation in schedule S must also perform the final write queue operation in schedule S dash। ये भी आप जानते हो, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ये S है, ये अगर लास्टली इसमें Tj जो है ये एक फाइनल राइट क्यू लिखता है कुछ भी कैलकुलेशन करने के बाद, व्हाटएवर कुछ और स्टेटमेंट है, उसके बाद ये फाइनल राइट क्यू ऑपरेशन कर रहा है कौन, शेड्यूल एस में Tj। तो एस डैश में भी Tj को राइट क्यू ऑपरेशन, लास्ट राइट क्यू जो है ये Tj में, एस डैश में Tj को करना होगा। तो पहला क्या था कि जो पहला रीड किया है एस में वही पहला रीड करेगा एस डैश में। अगर एस में Tj कोई राइट कर रहा है और उसको Ti पढ़ रहा है तो एस डैश में भी Tj को ही वही राइट करना होगा जो Ti को पढ़ना होगा। और तीसरा क्या है कि अगर फाइनल राइट ऑपरेशन Tj लिख रहा है इन शेड्यूल एस तो एस डैश में भी फाइनल राइट ऑपरेशन Tj को ही लिखना होगा। सो कंडीशन 1 and 2 ensure that each transaction reads the same value in both schedules, ठीक है। And condition 3 coupled with condition 1 and 2 ensure that both schedules result in the same final system state. So this is what is called view serializability, okay। और कहने का मतलब यह है, अभी तक since you are not writing, एक जगह एक नोट लिख लो somewhere, we say that a schedule capital S, a schedule capital S is view serializable if it is view equivalent to a serial schedule, is view equivalent to a serial schedule, okay। Like we can show you an example like this. You see this one, a schedule S is view serializable if it is view equivalent to a serial schedule. Every conflict serializable schedule is also view serializable. Below is a schedule which is view serializable but not conflict serializable.
You see, ये जो है रीड क्यू, राइट क्यू, फिर इस तरह राइट क्यू, ठीक है। तो इस तरह का राइट क्यू हमारे पास बना हुआ है। यू कैन सी यू कैन नॉट स्वाइप, ये राइट को हम स्वैप नहीं कर सकते, ये राइट को हम स्वैप नहीं कर सकते, ये राइट को हम स्वैप नहीं कर सकते। लेकिन वो जो तीनों रूल था, उस रूल के हिसाब से वी कैन से दैट दिस इज अ व्यू सीरियलाइजेबल, ये सीरियल ही चल रहा है। ओके, दिस शेड्यूल इज अ व्यू। You have to refer to the book by Kort, and that is there in the chapter of transactions. It is very nicely given, so you should go through this, though I am trying my level best to complete. Every view serializable schedule that is not conflict serializable, has blind writes. What are the meanings of these two? And वो question हम तुमको जो लिखा है, I want the answer to those two questions. So you understand what is a view serializable schedule. ठीक है, view serializable schedule किसको हम बोल रहे हैं? That is what I mean, जो कि दिखने से हमको लगे कि दिस इज सीरियल, और उसके 3 रूल्स हैं। दोज रूल्स आर आल्सो वेरी वेरी सिंपल। सो दिस इज व्हाट इज योर सीरियलाइजेबिलिटी। लेकिन अब ये सीरियलाइजेबल तो हम समझ गए, सीरियलाइजेबिलिटी का बात हो चुका, इसलिए ये सीरियलाइजेबिलिटी की बात हुई यहाँ पे कि हम लोगों को फॉरगेट अबाउट दिस स्लाइड, वी डोंट रिक्वायर दिस एनीमोर। तो हम लोगों को था क्या कि हम लोग व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का बात और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का बात इसीलिए किए कि हमको कंकरेंट शेड्यूल चलाना था। अब है कि हमको कंकरेंसी कंट्रोल करना है। पहले तो ये देख लें कि सीरियलाइजेबल होगा तो दैट विल गिव मी अ कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ डेटाबेस। तो इसीलिए अगर सीरियलाइजेबल रखते हैं तो दैट विल गिव मी अ कंसिस्टेंट स्टेट। ये क्लियर हो गया। अब है क्या कि नहीं, हमको कंकरेंसी कंट्रोल तो करना जरूरी है कि बिकॉज यू सी, अगर हम शेड्यूल सबको चलने दे दें और उस वी हैव स्टडीड दैट पॉइंट राइट नाउ कि अगर इसको चलने दे दे उसके बाद देखना है कि ये सीरियलाइजेबल है कि नहीं, तो वी आर टू लेट, वी आर रियली लेट। हम नहीं उसके बाद उसको चेक कर सकते, तब तो फिर रोल बैक वगैरह हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट वगैरह स्टेट हो जाएगा डेटाबेस का। बट वी वांट टू एंश्योर, हमारा मेन एम है टू एंश्योर कंकरेंसी, हमारा मेन एम है टू एंश्योर कंकरेंसी। और इसके लिए उसका पहला स्टेट था कि हम ट्रांजैक्शन क्या है पढ़ें, और ट्रांजैक्शन का सीरियलाइजेबिलिटी कैसे होता है पढ़ें, इन ऑर्डर टू गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट। लेकिन फिर भी ये जो इसको स्वैप कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, वो कैसे होगा? ये तो थियोरेटिकली हम पढ़ लिए कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी सब तो हम पढ़ लिए, लेकिन रूल क्या बनाएंगे? सो दे आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। सो जस्ट note now, give the heading concurrency control and concurrency control schemes. Give the heading concurrency control and concurrency control schemes. Now write down, when several transactions execute at the same time, when several transactions execute at the same time, that means they execute concurrently. That means they execute concurrently in the database, the isolation property may no longer be preserved. The isolation property may no longer be preserved. It is necessary for the system
it is necessary for the system to control the interaction among the concurrent transactions. This control is achieved through one of a variety of mechanisms called concurrency control schemes. So you see, these are the schemes available. Okay, हम लोग ये यूज करेंगे. In your syllabus, we have this lock-based protocols. So give the heading lock-based protocols. Lock-based protocol. ठीक है, हमारा लॉजिक क्या है? बार बार हम एक लाइन को दोहरा रहे हैं ताकि इट इज क्लियर इन योर माइंड. हमको कंकरेंसी देना है. जानते हैं कि कंकरेंसी करेंगे, कंकरेंट एग्जीक्यूशन तो परेशानी होगी. सीरियल एग्जीक्यूशन सबसे सेफ है, लेकिन कंकरेंट हमको देना है मैक्सिमाइज आउटपुट और थ्रूपुट. तो करने के लिए क्या करना होगा, हम पहले देखते हैं कि सीरियलाइजेबल है कि नहीं. तो वो तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ लें कि सीरियलाइजेबल कैसे होगा. होने से ठीक है, वो सीरियलाइजेबल है तो यानी इट विल गिव मी द कंसिस्टेंसी. लेकिन सीरियलाइजेबल करें कैसे? So to implement that, we have this lock-based protocols or these many concepts. So lock-based protocols. Note down. These are all from the book of God, but still I am giving you this dictation, the important ones. One way to ensure serializability, is to require that access to data items be done in a mutually exclusive manner. That is, while one transaction is accessing a data item, no other transaction can modify that data items. The most common method to implement this requirement is to allow a transaction to access a data item only if
only if it is currently holding a lock on that item. Then again, give a heading locks. I will explain, but first just note down 2 lines. Locks. There are various modes. In which a data item may be locked. And here we discuss 2 mechanisms. One is exclusive mode lock. And number 2, shared mode lock. ठीक है? Now, this is very, very important chapter to understand. इसको थोड़ा सा carefully, slowly समझना चाहिए. एक्सक्लूसिव और शेयर्ड हम बाद में आते हैं. पहले तो let us understand ये लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है. Let us try to understand that. कहने का मतलब ये हुआ कि अब क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन T1 है और ट्रांजैक्शन T2 है, ये जो हम पहले लिख रहे थे सीधा सीधा रीड क्यू या तो राइट क्यू, व्हाटएवर आई वाज राइटिंग, तो ये वाला जो है अब ये ऐसे नॉर्मली नहीं कर पाएगा. ये T1 और T2 रीड तभी कर पाएगा जब इसके पास इसको पढ़ने का राइट हो. इसको पढ़ने का इसके पास राइट होगा तभी ये पढ़ पाएगा. सो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इसको अगर T1 को Q पढ़ना है तो इट विल मेक T1 जो है इट विल मेक अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन दिस केस डेटाबेस अगर है तो वी से इट इज कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर. ये इसके पास एक रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको एक लॉक दो. तो हमारे पास 2 ही तरह का लॉक है. हम बोले पहला है शेयर्ड लॉक और दूसरा है एक्सक्लूसिव लॉक. ओके, तो ये हमको ये इससे मांगेगा T1 कि हमको एक लॉक दो भाई, हम क्यू के ऊपर हमको एक लॉक दो. तो देन दिस कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर विल चेक कि भाई और कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं ना है T2, T3, T4 इस तरह कुछ नहीं ना है जो कि ऑलरेडी इस क्यू के ऊपर लॉक लेके बैठा हुआ है. तो ये कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल स्कीम है जो कि ये देख रहा है कि T1 को ये लॉक जो हमसे मांग रहा है इसको हम दे सकते हैं या नहीं. कहने का मतलब है व्हेन यू अप्लाई फॉर अ बुक इन द लाइब्रेरी, you apply to the library and the librarian will check whether somebody else is having that book or not. अगर वैसा नहीं है तो they will give you the book. बट यहां पे 2 मोड है, शेयर्ड मोड एंड एक्सक्लूसिव मोड. तो शेयर्ड मोड में क्या है कि इट कैन अलाउ यू टू ओनली रीड. ये रीड कर सकते हो. इफ यू ऑब्टेन अ शेयर्ड मोड लॉक तो तुम यू कैन ओनली डू अ रीड ऑपरेशन. आई विल मेक यू राइट बट लेट मी एक्सप्लेन इट. अगर T1 है, T2 है और T3 है, ये सब कोई बोल रहा है कि हमको क्यू पढ़ना है, तो क्यू अगर पढ़ना है दे विल रिक्वेस्ट फॉर अ शेयर्ड मोड लॉक. ठीक है, और शेयर्ड मोड लॉक में कोई दिक्कत नहीं है. ये कंकरेंसी कंट्रोल बोल रहा है तुम भी पढ़ो और तुम भी पढ़ो. तो T1, T2, T3, T4 सब अगर बोल रहा है कि हमको सिर्फ क्यू का वैल्यू पढ़ना है तो हम आपको पढ़ने दे सकते हैं.
लेकिन अगर T1 को क्यू में कुछ लिखना है, इट वांट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ क्यू, तो शेयर्ड लॉक से नहीं होगा, तब उसको चाहिए एक्सक्लूसिव लॉक, ये मांगेगा। एक्सक्लूसिव लॉक जहां मांगा, दैट इज कॉल्ड एक्स लॉक एंड दिस इज कॉल्ड एस लॉक। एक्सक्लूसिव जब लॉक मांगा, तब ये देख रहा है कि किसी और के पास एक्सक्लूसिव लॉक तो नहीं है, बिकॉज हम अगर उस डेटा आइटम को रिजर्व करके रखे हुए हैं भाई कि हम अभी इसमें लिखेंगे, इसमें एक्सक्लूसिव लॉक लगाए हुए हैं हम आइटम नंबर क्यू पे, T2 एक्सक्लूसिव लॉक ऑलरेडी लिया हुआ है आइटम नंबर क्यू पे, यानी ये पढ़ भी सकता है क्यू को और इसमें लिख भी सकता है। तो तब अगर हम T1 को भी अगर लिखने का राइट दे दें, तब तो गड़बड़ हो सकता है ना, बिकॉज T2 लेके बैठा हुआ है, अभी वो पढ़ा नहीं है, लेकिन T1 को भी हम एक्सक्लूसिव राइट दे दिए ऑन द सेम डेटा आइटम क्यू, तो ये क्या करेगा, क्यू का वैल्यू पढ़ेगा, उसके बाद कुछ कुछ लिख देगा इसमें। अगर ये लिख दिया क्यू में, तो T2 जब रीड करेगा, कौन सा क्यू का वैल्यू पढ़ेगा, जो T1 उसको लिख दिया था, बट दैट इज नॉट टू बी डन। सो वो हमको देखना होगा वहां पे, वेदर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, ये सब का प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पे। सो दैट इज व्हाई वी ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स, यानी ये दो जो लॉक है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। ये T1 दोनों के लिए ही रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसको क्या मिलेगा डिपेंड्स ऑन द कंपैटिबिलिटी फैक्टर कि कौन लॉक किसके साथ जाता है। सो जस्ट नोट डाउन दीज फ्यू लाइंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखो, शेयर्ड लॉक। हम पहले एक्सक्लूसिव लॉक लिखवाए थे, बट राइट डाउन शेयर्ड लॉक। शेयर्ड लॉक, if a transaction TI, if a transaction TI has obtained a shared mode lock, denoted by capital S, on item Q, then TI can read, but cannot write Q. So if a transaction TI has obtained a shared mode lock denoted by capital S on item capital Q, then TI can read but cannot write Q. हम बताए थे कि शेयर्ड मोड लॉक करने का मतलब है पढ़ने का परमिशन मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? बाय कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर से मांग रहे हैं। देन पॉइंट नंबर 2, एक्सक्लूसिव लॉक। Exclusive. If a transaction TI has obtained an exclusive mode lock, denoted by capital X, on item Q, capital Q, then TI can both read and write Q. TI can both read and write capital Q. ठीक है, नोट कर लो। every transaction should request a lock,
in an appropriate mode, in an appropriate mode, on data item capital Q, on data item capital Q, comma, depending on the types of operations, depending on the types of operations, it will perform on Q. It will perform on capital Q. The request is made to, the request is made to the concurrency control manager, and the transaction can proceed, and the transaction can proceed with the operation, with the operation only after, only after the concurrency control manager, concurrency control manager grants the lock, grants the lock to the transaction, to the transaction. ठीक है? So now, very simple but very important to understand. तो अब है क्या कि हम पूरा चीज ये आई टोल्ड यू कि ट्रांजैक्शन अगर एक बार प्रोसेसर के पास चला गया, ट्रांजैक्शन होना शुरू किया, तो फिर तो ये बेकार हो जाएगा, ये कंकरेंसी कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं होने का है। तो होने से पहले ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसर प्रोसेस होने से पहले ये क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन T1 इसको मांगना होगा इससे लॉक कि हम इसमें काम करना चाह रहे हैं। T2 जो है इसको भी मांगना है लॉक, और इसको क्या हम करना चाहते हैं उसके बेसिस पे ये लॉक मांग रहा है। तो ये देगा या नहीं देगा, कैसे डिसाइड करेगा कि हमको देना है या नहीं देना है? कोई इंसान तो है नहीं, यहाँ कोई आदमी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर। सो देन तब एक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन करते हैं। कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स करने का मतलब है कि अच्छा अगर इसके पास ये वाला लॉक है तो क्या इसको हम वो लॉक दे सकते हैं, या तो ये लॉक हमसे मांग रहा है, ये चीज T3 के पास है, कैन आई गिव दैट? कौन सा लॉक इसको हम दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स का, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड सेकंड थिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये मान लेते हैं कि T1 जो है ये एक्सक्लूसिव लॉक मांग लिया है क्यू के ऊपर, और इसको कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर जो है दे भी दिया है कि लो भाई कोई नहीं यूज कर रहा है, तुमको हम दे दिए एक्सक्लूसिव लॉक ऑन क्यू। अब T2 जो है वो भी मांग रहा है एक्सक्लूसिव लॉक ऑन क्यू, तो भाई चूंकि ये रीड राइट दोनों का परमिशन है, तो ये T2 को ये वाला लॉक ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। रीड राइट करने का राइट हम दोनों को नहीं दे सकते। ओके, सो चूंकि ये नहीं देगा, सो दैट इज वाई ये तो प्रॉब्लम हो गया, इसको रुकना पड़ जाएगा T2 को। कब तक? जब तक ये अपना काम करके इसको खाली नहीं कर दे, तो ये अनलॉक करेगा, बोलेगा कि ठीक है हम छोड़ दिए इस लॉक को, तब जाके T2 इसको एक्सेस कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, ये जो कंकरेंसी में ये पहले लिखेगा, ये बाद में लिखेगा, इसका लिखने वाला ये पढ़ेगा, इसके लिखने वाला ये पढ़ेगा, ये वाला परेशानी ही खत्म हो जाएगा। हम इसको तब तक लिखने पढ़ने देंगे ही नहीं जब तक ये इस पे काम कर रहा है लिखने पढ़ने का। सो दैट इज वाई वो जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम यही खत्म करेंगे बाय यूजिंग द लॉक्स। सो व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स? So let us go to the second slide. This is what is your compatibility matrix.
कहने का मतलब है एस शेयर्ड लॉक एंड शेयर्ड लॉक दोनों कंपैटिबल है। अगर T1 के पास शेयर्ड लॉक है ऑन अ डेटा आइटम Q, कैसे लिखते हैं आई विल टेल यू इमीडिएटली, ओके। और T2 भी है, ये भी शेयर्ड लॉक मांग रहा है ऑन द सेम डेटा आइटम Q। अगर T2 एक मांग रहा है दूसरा लॉक, अगर कोई डेटा आइटम अगर कोई दूसरा है P R, ये कोई अलग अलग डेटा आइटम है, तब कुछ नहीं आता जाता। ये पूरा प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं जब सेम डेटा आइटम है दोनों केस में, तब का ये परेशानी है। अलग अलग डेटा आइटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ए में लॉक मांग रहा है, ए को अपडेट करने मांग रहा है, ये बी को अपडेट करने मांग रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। T1 T2 में दोनों को दे देगा लॉक जो भी मांग रहा है। लेकिन दोनों सेम डेटा आइटम में अगर मांग रहा है, T1 भी Q पे मांग रहा है, T2 भी Q पे मांग रहा है, देन इट सेज कि अगर दोनों शेयर्ड लॉक मांग रहा है, दोनों पढ़ने के लिए मांग रहा है, तो इट इज ट्रू, दे दो। लेकिन अगर एक के पास एक्सक्लूसिव लॉक है और दूसरा उसमें शेयर्ड लॉक मांग रहा है, मत दो। यानी T1 के पास एक्सक्लूसिव लॉक है Q के ऊपर और T2 उसमें मांग रहा है शेयर्ड लॉक, पढ़ने के लिए खाली मांग रहा है, तो बोला नहीं देंगे, नहीं देगा। दैट इज व्हाट इज कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। क्यों कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स में नहीं दे रहा है? बिकॉज ये पढ़ रहा है। ये कौन सा वैल्यू पढ़ेगा Q का? इनिशियल वैल्यू, ये जो लिखेगा उसको पढ़ेगा, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है। दैट इज वाई ये लॉक नहीं मिलेगा। सिमिलरली एक ही चीज है, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा। तो अगर सेम डेटा आइटम पे लॉक मांगा जा रहा है तो सिर्फ शेयर्ड लॉक है जो कि हम सबको दे सकते हैं। एक शेयर्ड और एक एक्सक्लूसिव नहीं दिया जा सकता ऑन द सेम आइटम, दोनों एक्सक्लूसिव नहीं दिया जा सकता। ओके, सो अ ट्रांजैक्शन में बी ग्रांटेड अ लॉक ऑन एन आइटम if the requested lock is compatible with locks already held on the item by other transaction. So T1 मांग रहा है एक लॉक Q पे, शेयर्ड लॉक मांग रहा है Q पे, तो ये किससे मांग रहा है? कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर से। ये देखा कि ठीक है भाई, कोई और T2 या T3 के पास अगर Q के ऊपर कोई लॉक नहीं दिया हुआ है तो भाई तुम तो ऐसे ही ले लो, खाली जा रहा है। लेकिन T2 जो है ये एक्सक्लूसिव लॉक इसमें लिया हुआ है, तो इट विल रेफर टू द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स कि एक्सक्लूसिव लॉक है, शेयर्ड लॉक मांग रहा है, सो इट इज नॉट टू बी गिवन। या शेयर्ड लॉक है, एक्सक्लूसिव लॉक मांग रहा है, नॉट टू बी गिवन। एक्सक्लूसिव लॉक है, एक्सक्लूसिव लॉक मांग रहा है, नॉट टू बी गिवन। अगर शेयर्ड लॉक है और इसके पास भी शेयर्ड लॉक है, देन इट इज टू बी गिवन। ओके, so any number of transactions can hold shared lock on any item or an item. But if any transaction holds an exclusive lock on the item, no other transaction may hold any lock on the item. If a lock cannot be granted, the requesting transaction is made to wait till all incompatible locks held by other transaction have been released. The lock is then granted. यानी लॉक करने के बाद इसको अनलॉक भी करना है. That is also necessary. So that is also necessary that a transaction अगर लॉक किया है तो फिर उसको अनलॉक भी करेगा. नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा? देयर विल बी अ प्रॉब्लम. वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर अनलॉक नहीं करता है तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम. सो वॉच दिस ट्रांजैक्शन परफॉर्मिंग लॉक्स. कैसा ट्रांजैक्शन दिखता है? पहले तो सिर्फ रीड राइट लिख रहे थे, नाउ यू सी व्हाट हैपेंस. एक ट्रांजैक्शन ऐसे लिखते हैं, ये मांगा लॉक एस ए. एस मतलब इट इज आस्किंग फॉर अ शेयर्ड लॉक. किससे मांग रहे हैं? कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर से. मांग लिया, जब उसको मिला देन इट डज रीड ए. जब पढ़ लिया इट डज अनलॉक ए. जरूरी नहीं है कि अभी अनलॉक करता है, इसको मतलब नहीं. इट इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे लिखते हैं ट्रांजैक्शन को. लॉक मांगा, पहले सिर्फ हम लिख रहे थे रीड ए एंड राइट ए. अब है कि लॉक मांगा, मिला, इट रीड्स ए, अनलॉक कर दिया ए को. Then it again asks for a shared lock on B. मिला, रीड किया, अनलॉक B कर दिया, डिस्प्ले A प्लस B. A और B तो उसके बफर में आया हुआ था, डिस्प्ले कर दिया.
locking as above is not difficult to guarantee serializability. If A and B get updated in between the read of A and B, the displayed sum would be wrong. So locking as above is not sufficient to guarantee serializability. इस तरह का लॉक होने से प्रॉब्लम है. सिंपली अगर लॉक और अनलॉक करता चला गया तो प्रॉब्लम है, बिकॉज इफ ए एंड बी गेट्स अपडेटेड इन बिटवीन द रीड ऑफ ए एंड बी, कोई और ट्रांजैक्शन है जो कि राइट कर रहा है T3, ये रीड ए कर रहा है ना, और उससे पहले यहाँ पे कहीं पे जो है ये डिस्प्ले करने से पहले, नॉट डिस्प्ले करने से पहले, ये रीड ए करने से ये इनिशियल वैल्यू को पढ़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये T3 जस्ट इसके आने से पहले ही उसको अपडेट कर दिया, तो ये वही रीड पढ़ेगा जो T3 ने लिखा है. तो इसीलिए इस तरह का बोल रहा है, लॉकिंग एज अबव इज नॉट सफिशिएंट टू गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी. If A and B gets updated in between the read of A and B, the displayed sum would be wrong. A locking protocol is a set of rules followed by all transactions while requesting and releasing locks. Locking protocols restrict the set of possible schedules. So that is what is your locking protocol idea. But it is, ठीक है, अब ये growing phase, shrinking phase, that we will talk about it later. But then किस तरह से हम लोग ग्रांट करते हैं लॉक को, that we will definitely talk about, but in the next class. यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी इतना ही जाने हैं, अगर हम आज का क्लास को समराइज कर दें तो, कि हम लोग करते क्या हैं, वी वांट कंकरेंसी, वी डिड सीरियलाइजेबिलिटी फॉर, चेक कर लिए सीरियलाइजेबल, रीड राइट था, स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये उतना आसान नहीं था स्वैप करना. स्वैप करने के लिए हमको देखना होगा कौन कब लिख रहा है, कौन कब पढ़ रहा है, दैट इज टू बी डन. तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ ली, लेकिन इस सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वी नीड टू गिव लॉक्स. तो दो तरह के लॉक हैं which can be obtained taken on a data item. One is called a shared lock, another one is called an exclusive lock. Shared lock अगर है तो कोई भी 2 या 3 ट्रांजैक्शन एक ही डेटा आइटम पे they can obtain a share lock. लेकिन एक शेयर लॉक और एक एक्सक्लूसिव लॉक एक ही डेटा आइटम पे 2 ट्रांजैक्शन को नहीं मिलेगा. 2 एक्सक्लूसिव लॉक ऑन द सेम डेटा आइटम दोनों मांग रहा है, do different transactions, वो भी नहीं मिलेगा. That is seen by this compatibility matrix. अब है क्या कि exactly ये कैसा चल रहा है, how exactly the transaction takes place, पहले ही वो हम जानेंगे. उसके बाद हम आएंगे to this part, this granting of locks. ठीक है, ये granting of locks में हम उसके बाद we will see to the next one. Okay, so that's all for today. we have seen this part of concurrency control. इस part को हम देख चुके, and then we meet tomorrow for the next part कि अब हम ये transaction को लिखते कैसे हैं, how do we write these transactions, कैसे grant होता है. एक छोटा सा एक पिक्चर अगर हम बनाएंगे तो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. उसके बाद ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स इज वेरी इजी, एंड देन द नेक्स्ट 2 थिंग्स, डेडलॉक्स एक्सेट्रा, दीज आर वेरी इजी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ओनली. सीरियलाइजेबिलिटी कैसे हुआ, आई होप यू अंडरस्टूड. उसके बाद जो है कि ग्रांट लॉक्स कैसे लिखते हैं अब ट्रांजैक्शन, वी विल डू इट टुमारो अगेन. सो थैंक यू वेरी मच. Anybody, any problems related to the classes? परसों वाला क्लास अभी तक हम अपडेट नहीं किया, I'm sorry for that, but I will definitely update that. Anyone, any problems, anything to ask? कुछ भी? None. Okay. Thank you very much. Thank you all.